Hello everyone, welcome to this lecture. Today we are going to practice some questions regarding the concepts we have learned from functions till recursion. Basically, we are going to use those concepts to solve these programming questions. So let's get started. Our first question says, in a group of students, everyone has a unique roll number. One day they are willing to find students who have perfect roll numbers. The basic means of this question is like you have given roll number of students and you need to write a program that will tell that is that number perfect or not. Now the question came is what is a perfect number? So perfect number are those numbers whose sum of its divisor are equal to that number only. For example, 6 its divisors are 1, 2 and 3. Yes, 1, 2 and 3 are the 6 are the divisor of 6, and if we do the sum of these three number we get 6 again. So that means 6 is a perfect number. Now we need to program that will find that is that number perfect or not. So for that we have given some information like input format will be an integer which represent roll number of a student, and output tell us perfect or not. So let's start the question. So first we will have a number which we need to take input. Input enter the number. Now we will create our function def. We can name it as perfect num. Then we will pass this our number. Now we need to write program to find perfect number. So basically what we need to do, we need to find that is the sum of the divisor of that number is equal to that number or not. The divisors of 6 are lie between 1 and 6 only. Beyond 6 there is no number that can divide 6. So we will iterate all the numbers from 1 to the number which we will give which we will give input. For example, if we suppose 6 is our number, then we will iterate through 1 to 6 or 1 to 6. We can say 1 to 5 because 6 is already a divisor of 6. So we will not count that. It says na excluding itself. So we will not include 6. So we will use for loop I in range. Now this will help us to iterate through all the numbers that will lie between 1 and our number, and that will be 1 to num. Now we will apply the condition that will check it is perfect or not. How can we check that it is perfect or not? Suppose we first I will become 1. Then we need to check that is it dividing 6 fully or not? Like its remainder value is 0 or not. We need to check that. To check that what is the remainder of when 6 is divided by 1, for that we write condition. If our number, which can take an example as 6, modulo I, first I is 1 equal to 0. So we are checking here is 6 is divisible by 1 and it is giving us remainder 0 or not.
If this condition is true, then we will update the total. Now from where this total come? We need to initialize total with 0 first. So that if this condition is true, then 0, then total which is 0, we will add 0 plus I. I means 1. And when I become 2, yes, I is also divisible by 6. So total will updated from 1 to 1 plus 2, which is 3. Then total will become 3. Then I becomes 3. 3 is also divisible. So again, total is what? 3. And I is also 3. So this statement will execute. So total is also 3 and I is also 3. So 3 plus 3 give us 6. Now we will compare if total is equals to none. That means we need to return perfect. Else, if total is not equal to none, then we will return not perfect. Simple. Then we need to call by using print because we are using here return. We need to call our function. Then we will pass our num, which will take us from, which will be provided using input. Now when we just a second. Yeah. Now let's get back to the question. And if I run this command, first I will need to give input. Suppose 6 I give, and it is saying that it is a perfect. Now if I run this command and I write 4, not perfect, then 5, not perfect, and 28, it is perfect. So between number 1 to 100, there is only two perfect numbers are there, which is 6 and 28. So this is the program to find perfect numbers. Now let's move to the second question, which is complete the Python function order chocolate which take two integers. In this question, what is this basically saying? We have two things. First is the number of chocolates, that how many chocolates we have, and second the number of students, that how many students are there to which we need to distribute our chocolates. Suppose we have 12 chocolates and number of students we have are 6. Then to each student, how many chocolates will be distributed? That how many chocolate will be given to the each student so that every student should have even number of chocolates. If we have 12 number of chocolates and 6 number of students, then it will be 2, right? 2 chocolates will be given to each student. If we want to distribute even number of chocolates, then same, this program asked if chocolates can be evenly divided, the function returns 0, means
Suppose we have 12 number of chocolates and 6 students. So yes, we can distribute chocolates evenly to all students. So the answer we get, the output we will get will be 0. That function will return 0. Otherwise, it will return the minimum number of extra chocolates need to make the even distribution. अगर तो हमारा जो चॉकलेट्स है वो बराबर सब में बट रही है तो हमें तो 0 रिटर्न करना है। वरना सपोज हमारे पास 14 चॉकलेट्स है और 6 स्टूडेंट्स हैं तो ये तो हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हर बच्चे को। मान लो दो दो करके भी किया तो आखिरी बच्चे को कितनी चली जाएगी? 1 2 3 4 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आखिरी बच्चे को 2 एक्स्ट्रा चॉकलेट देनी पड़ेगी। अरे तो नाइंसाफी हो गई ना, बाकी सब बच्चे बुरा मान जाएंगे। तो हमें तो भाई सब में बराबर बांटनी है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को कम दे दी किसी को ज्यादा दे दी। तो उसमें यही कहा है कि अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती तो क्या करो, तो हमें रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है? हमें रिटर्न करना है कम से कम कितनी एक्स्ट्रा चॉकलेट लगेंगी ताकि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। कम से कम कितनी लगेंगी? अब सोचो जरा। 14 है। अब लास्ट बच्चे पे 4 जा रही है। अगर तब भी कोशिश करे तो किसी ना दो बच्चों पे 3 3 हो जाएंगी। तो हमें क्या करना होगा, 14 में 4 और ऐड करने पड़ेंगे जिससे ये क्या हो जाएगा, 18 चॉकलेट हो जाएंगी। और जिससे सबको कितनी जाएगी, सबको 3 3 चली जाएगी। सबको 3 3 जाएगी फिर, जिससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो मतलब हमें आउटपुट में 4 देना होगा। आउटपुट हमारा 4 आएगा अगर हमारी जो चॉकलेट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही है। ये एक एग्जांपल था, ठीक है। तो हमें ऐसा एक प्रोग्राम लिखना है कि अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो 0 आउटपुट दे। आउटपुट क्या दे? 0। वरना अगर नहीं हो पाया इवनली डिस्ट्रीब्यूट तो आउटपुट दे एक्स्ट्रा नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ एक्स्ट्रा चॉकलेट्स रिक्वायर्ड so that we can distribute evenly to all students। और अब देखते हैं इनपुट फॉर्मेट में क्या दिया है कि पहला तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो कि n है, दूसरा m है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। ऐसा नहीं बच्चा बढ़ा दिया सबको काट दिया ना। बच्चे बच्चों का जो नंबर है वो वही रहेगा, चॉकलेट्स के नंबर के साथ खेलना है। और एक कंडीशन दी है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना वो 0 से तो ज्यादा ही होना चाहिए, ये नहीं कि नेगेटिव नंबर डाल दिया। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें 0 से कम दिया है या 0 दिया है तो हमें इनवैलिड आंसर देना है। हमें कुछ आंसर नहीं देना, हमें सीधे इनवैलिड देना है। तो कंडीशन जान ली क्या क्या है? तो कंडीशन का ही खेल है इसमें। सबसे पहली कंडीशन तो हमारी यही रहेगी। सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे कि बच्चों का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए और ना ही 0 होना चाहिए। तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या नहीं। फिर उसके हिसाब से हम आंसर देंगे। सबसे पहले इफ m is greater than 0 then we will write our condition। और इसके else में हम लिख देते हैं, रिटर्न कर देना सीधे इनवैलिड। अभी एरर दिखाएगा क्योंकि हमने बीच की कंडीशन नहीं लिखी है। तो ये इस इफ का ये else हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट our condition, main condition that will tell that is
distribution is even or not, and if it is not, then how much extra chocolate we require. तो अब कैसे चेक करेंगे, क्या आ रहा है दिमाग में? सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हम इस लॉजिक को लिखेंगे क्या। सपोज फिर से यही एग्जांपल लेते हैं 12 और 6 का। क्या जो 6 है, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो 12 चॉकलेट्स है वो सब में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 6 के 6 बच्चों में? मान लो डिवाइड किया 12 को 6 के साथ, तो आंसर क्या आता है? 2 आता है ना। पर इससे तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा, 2 आ रहा है आंसर तो। पर अगर हम कुछ ऐसा सोचें कि जैसे मॉड्यूलो, मॉड्यूलो का क्या मतलब होता है? रिमाइंडर। और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है? ये जो 6 है वो डिविजिबल हो रहा है 12 के। मतलब हम 6 को हम 6 को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि वो हमें 12 ला के दे, है ना। इसका मतलब क्या है? कोशेंट है 2, रिमाइंडर है 0। मतलब अगर हम 2 को प्लस करें 6 बार तो मतलब हमें 12 मिलता है। तो एक तरह से इन सबको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लो। जैसे पहला बच्चा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा है, छठवा है। मतलब हर स्टूडेंट को दो दो चॉकलेट मिल गई। तो मतलब 6 क्या हो रहा है, वो 12 से डिविजिबल है। तो मतलब सारे स्टूडेंट्स को इक्वल चॉकलेट्स बांटी जा सकती है। इसका मतलब ये है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हमें तो अपनी पहली कंडीशन मिल गई कि अगर हमारा, सबसे पहले तो हम इनपुट डाल देते हैं जो कि m है हमारा नंबर ऑफ चॉकलेट्स, जो कि इंटीजर ही रहेगा। इनपुट, एंटर दी नंबर ऑफ chocolates. Now our number of students, int, then input. Now enter the number of students. सही है कि नहीं? बढ़िया। चलो इनपुट ले लिया। अब हम क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे ना कि अगर रिमाइंडर 0 है ना, अगर हम नंबर ऑफ चॉकलेट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकाले, अगर वो 0 आ रहा है मतलब हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे जितने भी चॉकलेट्स है, कितने भी बच्चे हैं। तो वी विल डिवाइड अवर n, if it is 0 then we need to return 0, that is written question. We need to return 0, else what we need to do? Now what we need to do, अगर else में क्या आएगा कि जब 0 नहीं होगा, number of students divided by, sorry, number of chocolates divided by number of students give us remainder. Remainder is if it is non-zero, that condition we need to write in else. And if it is non-zero, that means the number of chocolates cannot be evenly distributed to all the students. So for that condition we need to return the minimum number of exact chocolates need to make even distribution. We need to find out that how many
number of extra chocolates we need to get so that we can distribute evenly. Now, how we will do that? For that, what we can do, डिवीजन में क्या होता है, जैसे 0 आ गया, मान लो 14 को मैं डिवाइड करूं 6 के साथ, तो वो मुझे क्या ला के देगा? 14 चॉकलेट हैं, 6 बच्चे हैं, तो ये मुझे डिवाइड कोशंट क्या ला के देगा वो बताओ पहले तो ये कोशंट तो ला के देगा 2। अगर हम फ्लोटिंग नंबर की बात ना करें, इंटीजर की बात करें, पोस्ट फ्लोर मॉड्यूल लगा दिया है, अब क्वेश्चन तो 2 आएगा, बट ये डिविजिबल नहीं होता ना, तो मतलब, और ये समथिंग कुछ 2 पॉइंट करके क्या आएगा, 6 2 12 2 6 2.3 समथिंग कुछ आएगा, है ना? तो मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल, और इसका जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा? इसका रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर 2 आएगा। तो जो जब भी हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बताता है? अगर हम इस रिमाइंडर को अगर हम इस रिमाइंडर को जो कि 2 है, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं अपने 14 को, अगर हम 6 और 2 को माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें 4 मिलेगा। और इस 4 को ले जाके अगर हम 14 के साथ ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 18। और 18 क्या होता है, डिविजिबल होता है 6 से? हाँ बिल्कुल होता है। तो ये 18 वो नंबर है जो कि कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 6 से, जो जस्ट 14 के बाद आता है। 14 के बाद क्या आता है? 15 आता है। 15 होता है 6 से डिविजिबल? नहीं, 15 नहीं होता। फिर क्या आता है? 16 आता है। 16 भी नहीं होता। फिर 17 आता है। 17 नहीं होता। फिर 18 आता है। तो 14 के बाद 18 ही ऐसा नंबर है जो 6 से डिविजिबल हो जाता है। तो मतलब ये हमें ये बता रहा है कि अगर हम इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से सोचें तो मतलब 18 नंबर ऑफ चॉकलेट्स हमें चाहिए होंगी अगर हमें 6 बच्चों में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम चॉकलेट कम नहीं कर सकते, हम बढ़ा ही सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो 18 वो नंबर है इस सिचुएशन के लिए। सिचुएशन तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर मान लो ये सिचुएशन हुई तो 18 ही वो नंबर है जिससे हम 6 बच्चों को बराबर बराबर चॉकलेट बांट सकते हैं। तो मतलब हमें क्या करना होगा? हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर है 2। फिर उस रिमाइंडर को हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ माइनस करना है, और जो नंबर आएगा हमें वही रिटर्न करना है, क्योंकि 4 + 4 4 को 14 के साथ ऐड करके 18 हुआ। हमें रिटर्न क्या करना है? जो हमें मिनिमम नंबर ऑफ एक्स्ट्रा चॉकलेट चाहिए, हमें टोटल चॉकलेट होना चाहिए, हमें मिनिमम एक्स्ट्रा चाहिए ना। तो 4 ही तो है वो मिनिमम एक्स्ट्रा जिससे हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो मतलब हमें रिटर्न करना है। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन नहीं बनाया ना हमने। फंक्शन इवन डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। काफी बड़ा नाम हो गया, चलो कोई बात नहीं। और इसको हम
अपना एन और एम पास कर देंगे, फिर यहाँ पे इंडेंटेशन देनी होगी। एक बारी में भी कर सकते हैं, जैसे ऑल्ट को दबाया, यहाँ पे भी कर्सर प्रेस किया, यहाँ पे भी प्रेस किया, यहाँ पे भी क्लिक करा, और एक ही बारी में दे दिया। अच्छा फीचर है काफी, वीएस कोड में मिलता है ये फीचर। ऑल्ट को प्रेस करके ऐसे जैसे क्लिक करते हैं ना नॉर्मल, वैसे क्लिक करो तो बहुत सारे कर्सर आ जाते हैं। इसको तो यहीं रहने दो। तो हमें रिटर्न करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से हम माइनस करेंगे रिमाइंडर ऑफ दिस। बस हो गया काम। और ये अपनी कंडीशन तो है ही। अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है अपने फंक्शन को। प्रिंट क्या करेंगे हम, इवन डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको पास कर देंगे अपना एन और एम, जो हम इनपुट में लेंगे। सही है, बढ़िया दिख रहा है। तो अब अगर चॉकलेट्स, स्पेलिंग तो सही है ना, चॉकोलेट्स मुझे तो सही लग रही। तो मान लो अपना पुराना एग्जाम्पल यूज करते हैं, 12 और 6, तो रिटर्न कर रहे 0, मतलब बराबर बराबर बांटी जा सकती है चॉकलेट। और अगर 14 डालें, फिर से 6 डालें, तो 4 चाहिए हमें। एक और कोई सिचुएशन ले लेते हैं, 20 है, और मान लो 20 के 20 बच्चे हैं, तो सबको बच जाएगी। और 20 हैं, और क्या कर देते हैं, अब मान लो 19 बच्चे हैं, तो 19 बच्चों के लिए कितनी चाहिए होगी, नहीं मान लो 6 बच्चे हैं, तो सिंपली लिख के फाइंड आउट कर लेते हैं कितने चाहिए होंगे एक्स्ट्रा। ये क्या हो गया, नहीं 4 चाहिए तब भी एक्स्ट्रा, 24 ना, तो 24, 20 तो आता है नहीं 6 के टेबल में, 24 आता है। और 20 से छोटा कोई नंबर तो ले नहीं सकते, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा कितना होता है 18, और 6 4 जा 24। 18 हम कर नहीं सकते, चॉकलेट कम हम कर नहीं सकते, बढ़ा ही सकते हैं बस, तो 4 चाहिए होंगी, तो 24। सही है, बढ़िया। अब तीसरा क्वेश्चन। अब ये क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें रिकर्जन का यूज करके हमें नंबर ऑफ टर्म्स दी होंगी। एक नंबर दिया होगा, सपोज 3 दिया है, 3 टर्म तक हमें ज्योमेट्रिक सम निकालना है। मतलब हमारे पास 1 है, प्लस 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, ये कितनी टर्म्स है, 3 है ना, 1 2 3। तो मतलब हमें इन टर्म्स का सम निकालना है, 4 होती, तो यहाँ पे हम एक और टर्म ऐड करनी पड़ती, 1/4 का स्क्वायर। 4 टर्म होती तो हमें ये 4 टर्म्स ऐड करनी पड़ती, तो हमें इन सब का सम निकालना है यूजिंग रिकर्जन। अब ये कैसे होगा, इनपुट तो वही है इंटीजर जो कि n रिप्रेजेंट करेगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। आउटपुट में हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लाना है, लेकिन 6 डेसिमल प्लेसेस का, और नंबर 0 से तो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो रिकर्जन में तो फंक्शन बनाना पड़ेगा।
ज्योमेट्रिक सम है तो जियो सम लिख देते हैं ना, और इसको अपना नंबर पास कर देंगे, उसका हम इनपुट ले लेते हैं। सही। Now, basically what we need to find, whatever the number we have given, it is a term. Enter the number of terms. It represents the term. This is term 1, term 2, term 3, term 4, and n number of terms we have. So till whatever the term we have, till that term we need to find the sum. Suppose 3 term, then we need to find till 3 terms sum. So how we will do that? So if the term number 3 is given, that means we need to plus 1 upon 3 का square plus 1 upon 2 का square plus 1. 1 basically 1 upon 1 का square क्या है? 1 ही तो है, ठीक है? Basically what we need to return. अब using recursion we need to call this function again and again until our base criteria is fulfilled. So first we will write what we require, like how will we iterate through each term, and how we will add those terms. For that we will write n divided by n का square plus n is 3. Inside this n, 3 will get inserted, and what we need to add, suppose n is 3, right? Here 3 will be, oh sorry, it will be num. It will be num, and here exponential sign is used. And we can put inside the bracket. And now if num is 3, here num is 3. Now we need to plus previous value, which is this 1 divided by 2 का square. So we need to update the value by subtracting 1 to the num. मतलब num में एक घटाना है ना, तो हम उसको अपडेट करेंगे, जैसे हम पिछली बार कॉल करते थे ना, कॉल करते वक्त अपडेट कर देंगे। कॉल करते वक्त हम अपडेट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय नम -1, और इसका कर देंगे स्क्वायर और ब्रैकेट डाल देंगे। अब ये जियो नम, अच्छा जियो सम है, सॉरी फॉर दैट, जियो सम आ गया। तो हमें यही करना है बेसिकली। हमने पहले 3 का कैलकुलेट तो कर लिया, बट उसमें हमने बोल दिया यार हमें तो पहले 1 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर दो। फिर जब जब कॉल करेंगे ना इसको, नहीं यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे तो नम -1 आएगा ना। अपडेट करना है ना कॉल करके, तो अपडेट क्या करना है, नम करना है, और नम को कैसे अपडेट करना है, -1 करके अपडेट करना है। तो ये निकालने से पहले हमें तो कॉल लगेगा जी, कि पहले तो मुझे num -1 मीन्स 3 -1 मीन्स 2, नम को 2 डालो फिर कैलकुलेट करो, फिर प्लस होगा, फिर अगेन कॉल होगा, कि नम को 1 करो फिर कॉल करो, फिर इसमें कैलकुलेट होगा। तो अब हमें तो काम पता चल गया हमें क्या करना है।
अब हमें कंडीशन डालोगी ये कब रुकेगा, वरना ये इनफाइनाइट चल जाएगा ना। ये कब रुकेगा, एक ही जगह रुकना है इसको, मतलब 4 से शुरू होगा तो जाके 1 पे रुकेगा, 3 से शुरू होगा तब भी जाके 1 पे रुकेगा, 2 से जाके शुरू होगा तब भी जाके 1 पे रुकेगा, तो मतलब एक ही जगह रुकना है। तो जब जो हमारा नम है, नम, ये वाला नम, ये 1 हो जाएगा ना, और कहें तो 0 हो जाएगा, तब हमें कुछ नहीं करना, तब हमें सीधे रिटर्न करना है इस फंक्शन के बाहर, और जो हमारी फाइनल वैल्यू होगी हमें उसे ही रिटर्न करना है। समझे? इफ num equals to 0, then return from this function or return we will 0, else we need to return our normal answer. Okay, here we have find what we need to do, and here we have done where we need to stop our iteration, else it will become infinite loop. Now we need to print our, notice one thing also, we need to print result up to 6 decimal place. So we will use formatting here. We will write f, then inside this we will call geosum, because when we use return, our value is passed to the that point where function is called. I hope you remember. Now we will pass our num, and here we will do it 6f, which will give us 6 decimal places. Now if I run this command, it will ask to write the number of terms. If I write 3, then we will get our answer. कैलकुलेटर खोल के देखी क्या, एक बार चेक करी कि सही आंसर आ गया है। तो 1 में हमें प्लस करना है 1 डिवाइडेड बाय, ये क्या होता है, इसका कैलकुलेटर काम कैसे करता है? 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अरे ये क्या हो रहा है, अरे यार मेरे को नहीं आता, छोड़, ये आंसर सही है। मेरे को ये आंसर आ रहा है ना 1 पॉइंट, चेक भी कर लिया अब तो, 1.36111, 1.36111, और डेसिमल के बाद 6 टर्म्स है टोटल, है कि नहीं? हाँ 6 है, तो मतलब हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है। तो ये तो था रिकर्जन की कॉन्सेप्ट के साथ एक लॉजिक। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, then fifth will be last, and these two are very easy question, and fourth question you know already, we have done already this question in practice number
2. This is a economy ticket quotient. You remember? Suppose we have 5 economy tickets and you are at the 7th position. So you need to pay. So after the 5th position, person need to give extra 5. Then it will increase by position 5 plus 5 plus 5. In this example, you need to pay, suppose cost of one economy ticket is 5 rupees. Then you need to pay 5 plus 5 plus 5, which is 15. I hope you remember. Okay. So here input we have given three things: number of economy tickets, the cost of economy, the cost of single economy ticket, and the your position in line. And you need to write now function here. Logic is same, but you need to solve it using creating a function. So I will show you answer. Uh, I can explain you again. Suppose you have 5 economy tickets and we have uh, 5 as the cost of a one economy ticket. So the first person give 5 rupees, second person also give 5 rupees, third person will also give 5 rupees, fourth person will also give 5 rupees, and fifth person also give 5 rupees. Now the economy tickets are end. There is no enough economy tickets. Now you need to buy VIP tickets, and VIP tickets are increased by 5 rupees after every other person. Suppose there is sixth person will give 5 plus 5, which is 10. And you have seventh position. Then you need to give 10 plus 5, which is 15. And the person behind you, which is in eighth position, he will give 20 rupees. So this is in this manner the number of prize is increasing. Then the person in ninth position will give 25 rupees. So it is increasing by 5 rupees after every other person if the economy tickets are not enough. Now we need to create a function of this. Suppose basically in this question you need to find that according to your position how many cost of ticket you need to pay. If you are in eighth position, you need to give 20. If you are in seventh, you need to give 15. And there is two cases. या तो तुम इस रेंज के अंदर हो, मतलब मान लो 5 टिकट है, इकोनॉमी टिकट है और तुम थर्ड पोजीशन पे हो तो तुम्हें 5 ही देने होंगे। तुम 1 से लेके 5 तक कोई भी पोजीशन पर हो तुम्हें 5 ही देने हैं। अगर तुम 5 फिफ्थ पोजीशन के बाद कहीं पाए गए तो हमें एक फॉर्मूला निकालना होगा और उस फॉर्मूले के हिसाब से तुम्हारी जो पेमेंट होगी वो निकलेगी, तुम्हें कितना पे करना है कॉस्ट। तो पहले तो हम फंक्शन क्रिएट करेंगे फॉर सपोज अमाउंट रख देते हैं और हम अपना और हमें तो पहले तीन चीजें इनपुट लेनी है। पहला तो है नंबर ऑफ टिकट, वो तो इंटीजर होगी, इंटीजर ही है मतलब। इनपुट पहले पूछेगा एंटर दी नंबर ऑफ टिकट्स, अब आएगा कॉस्ट ऑफ वन टिकट, वो भी इंटीजर होगा। इनपुट
पूछेगा इंटर दी कॉस्ट ऑफ वन। इकोनॉमी लिख रहा, सिर्फ टिकट लिख रहा हूँ। अब तीसरा इनपुट होगा तुम्हारी पोजीशन, जो कि अगेन तुम्हारा इंटीजर है। एंटर योर पोजीशन इन क्यू बोलते हैं वैसे, लाइन को क्यू भी बोल देते हैं। ठीक है, अब हमारा फंक्शन शुरू होगा, जो कि हमें पैरामीटर लेगा नंबर ऑफ टिकट्स, या टिकट एस लगा देते हैं, ग्रामर गलत हो जाएगी। देन कॉस्ट एंड देन योर पोजीशन। बढ़िया। अब हमें लॉजिक लिखना है इफ कंडीशन को यूज करके कि क्या होगा। दो ही कंडीशन निकलेगी, या तो तुम लाइन के अंदर हो, मतलब तो रेंज के अंदर हो जिससे तुम्हें 5 ही देना पड़ेगा, वरना तुम बाहर हो जिससे हम फॉर्मूला निकालेंगे कैलकुलेट करने के लिए। इफ योर पोजीशन इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ टिकट्स, देन रिटर्न कर दो कॉस्ट सिंपली, कि वही तुम्हें देनी है। यहाँ पे लिख भी देते हैं, अमाउंट यू नीड टू पे, जो कि हमारी कॉस्ट है। एल्स मतलब तुम बाहर हो, और तो की कंडीशन हो नहीं सकती। हमें क्या रिटर्न करना है, अब हमें फाइंड करना है वो फॉर्मूला जिससे हमें अपनी कॉस्ट पता चल रही है अगर हम रेंज के बाहर हैं। तो एक चीज नोटिस करो कि 5 5 तो बढ़ रही है, 5 5 बढ़ रही है, मतलब पहली बारी पे 5 बढ़ा तो 10 हो गया, 5 से 5 बढ़ाया तो 10 हो गया, फिर 5 बढ़ाया 15 हो गया, फिर 5 बढ़ाया 20 हो गया। तो ये देख रहे हो, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। अगर हम इस ये जो 6th पोजीशन पे खड़ा है, इसमें एक तरह से 5 का टेबल ही चल रहा है। जो 5th के बाद ये तो 5 इंटू 1, तो 5 कॉस्ट ही देनी है। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, और आगे क्या होगा 30 होगा, 5 6 ज़ा 30। तो ये तो डिवाइड हो रहे हैं वन के साथ, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है 5 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ और 5 के साथ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक चीज कर सकता हूँ, अगर मैं 7th पोजीशन पे हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं 7 माइनस 5 करूंगा, 7 माइनस 5 करूंगा, और 7 माइनस 5 करके क्या आएगा, 2 आएगा। 2 मतलब जितना मैं दूर हूँ, मैं इस 5th पोजीशन से जो कि लास्ट टिकट है इकोनॉमी, उससे मैं 2 पोजीशन दूर हूँ ना, तो एक तरह से नंबर लाइन तो पड़ी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या लिख रहा हूँ, 7 6 8 9। तो 6 जो है वो 9 से कितना आगे है, हम 9 माइनस 6 कर देंगे तो मतलब 3 नंबर आगे है ना। जैसे हम डिस्टेंस काउंट करते थे, तो मान लो एक बंदा खड़ा है 4 सेंटीमीटर पे, मतलब मीटर पे, और एक बंदा खड़ा है 8 मीटर्स पे। तो बताओ वो दोनों कितनी दूरी पे है, कितने मीटर दूर है। तो हम क्या करते थे, 8 माइनस 4 करते थे, तो हमें 4 मीटर आता था।
तो वही लॉजिक यूज करना है हमें। अगर मैं 7 - 5 करूं तो मेरे पास 2 आएगा, और उस 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, 10 आएगा। बाकी तो मुझे इकोनॉमी, जो नॉर्मल इकोनॉमी टिकट की कॉस्ट है 5, वो तो ऐड करनी ही है। तो क्या है आंसर? 9 पे। तो कैसे कैलकुलेट होगा? जो तुम्हें नॉर्मल कॉस्ट देनी है वो तो देनी ही है, उसमें ऐड होगी ना 5। अब एक्स्ट्रा कितनी देनी होगी वो तुम्हारी पोजीशन पे डिपेंड करता है। वो कैसे निकलेगा? पोजीशन को माइनस कर दो नंबर ऑफ टिकट के साथ, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ, क्योंकि 5 का टेबल चल रहा है, क्योंकि 5 से इंक्रीज हो रही है। क्वेश्चन में यही बोला है कि 5 से इंक्रीज हो रही है 6 टिकट से। Now our main logic is done. Now we just need to call this our function. We write print, then amount, then passing our arguments to the parameters. सही है? चलो चेक करते हैं। नंबर ऑफ टिकट्स कितनी है? 5 है। एंटर द कॉस्ट ऑफ 1 टिकट, 5 ही मान लो। तुम्हारी पोजीशन क्या है? अमाउंट यू नीड टू पे 15। सही है कि नहीं? ठीक है। हम्म, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो 10 है नंबर ऑफ टिकट, और 20 रुपीज कॉस्ट है, और तुम्हारी पोजीशन अगर 20 के अंदर ही है ना, 10 टिकट है, अगर तुम्हारी रेंज 10 के अंदर ही है, मान लो 4 है, तो तुम्हें 20 ही पे करने पड़ेंगे। मान लो तुम 10 पोजीशन पे भी खड़े हो, और 20 टिकट है, और तुम 10 पे ही खड़े हो, तो तब भी 20 ही देने पड़ेंगे। और अगर सेम एग्जाम्पल, 10 टिकट है, 20 कॉस्ट है, अगर 11 पे खड़े हो गए तो 5 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 25। बस यही था इस क्वेश्चन में, पहले भी कर चुके हैं, फिर से करें। हाँ, ये भी काफी सिंपल एग्जांपल है, क्वेश्चन है मतलब। That in this question you need to write a program using lambda function to calculate the area of square, rectangle and triangle। और स्क्वायर का कैसे एरिया निकलता है? साइड का स्क्वायर करके, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ, और ट्राइंगल का हाफ ऑफ हाइट इंटू बेस की लेंथ। चलो करते हैं। अभी के लिए इस लाइन को इग्नोर कर देना कि तुम्हें टू स्पेस सेपरेटेड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर चाहिए इनपुट में। तो हम एक ही लाइन में दो इनपुट ले सकते हैं, पर वो अभी हमने सीखा नहीं है, तो हम डिफरेंट लाइन पे ही लेंगे। पहले तो साइड को इनपुट ले लेंगे। क्या ये भी फ्लोट है क्या? हाँ फ्लोट है, तो हम यहाँ पे फ्लोट लिखेंगे। फ्लोट इनपुट, एंटर दी लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। Now for the length of our rectangle, float input, enter the LEN GTH
length of rectangle. नाउ विड्थ को हम लेंगे अलग ही लाइन पे लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमने सीखा नहीं है, तो जो सीखा नहीं है उसको अप्लाई क्यों करेंगे। एंटर दी width of rectangle। अब बात आती है हमारे ट्रायंगल की, तो बेस बना देते हैं, ये भी फ्लोट हो जाएगा, इसको भी इनपुट ले लेंगे। एंटर दी, कुछ भी लिख देता हूँ मैं, जैसे, अरे, एंटर दी लेंथ ऑफ बेस ऑफ ट्रायंगल। सही है। नाउ अवर हाइट, ये अच्छी बात है, सारे वेरिएबल्स अलग अलग हैं, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी नाम सोचने में। एंटर दी, एंटर दी हाइट, एंटर दी हाइट ऑफ ट्रायंगल। तो ये तो हो गया। अब हमें लैम्डा फंक्शन बनाना है इनका एरिया कैलकुलेट करने के लिए, और आउटपुट में भी फर्स्ट लाइन शो एरिया स्क्वायर, सेकंड लाइन रेक्टेंगल, देन थर्ड लाइन। सिंपल है। स्क्वायर के एरिया के लिए स्क्वायर वेरिएबल डिफाइन करते हैं और इसके अंदर लैम्डा फंक्शन लिखेंगे। अरे, आर्गुमेंट भी पास करना है तो उसे इसके लिए तो साइड ही है, तो साइड का सिंपली स्क्वायर। अब बात आती है रेक्टेंगल को पूरा नहीं लिखेंगे, आर ई सी टी लिख देंगे, इसका भी लैम्डा फंक्शन बनेगा, और इसमें लेंथ जाएगी एक तो, और एक हमारी विड्थ जाएगी। और हमें क्या करना होगा, एल ई एन जी टी एच इंटू डब्ल्यू आई डी टी एच। अब बात आती है ट्राइंगल की, ट्राई लिख देते हैं, लैम्बडा अपना बेस है, अपना हाइट है, और अपने उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना, सिंपली एच ई आई जी एच टी इंटू बेस डिवाइडेड बाय 2 मार देते हैं, ये जी एच टी इंटू बेस। अच्छा, पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए क्या है, पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए क्या, मतलब सेम होनी चाहिए क्या। जी आई जी एच टी सब कुछ तो सेम ही है, क्या दिक्कत है। हमें क्या होगा, प्रिंट करना होगा, प्रिंट एरिया ऑफ स्क्वायर, एस क्यू यू ए आर ई, इज अवर, बेसिकली स्क्वायर, हमें स्क्वायर ही तो प्रिंट करना है, स्क्वायर के अंदर स्टोर है ना वो लैम्डा फंक्शन। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूरा लिख देते हैं इस बार, अच्छा दिखेगा आउटपुट, अपना हो जाएगा आर ई सी टी। और अब आ जाते हैं प्रिंट पे, ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल कॉमा ट्राई, इधर की स्पेस हटाते हैं, जरूरत नहीं है कुछ। सही है, मेरे हिसाब से तो सही चलना चाहिए। एंटर द एरिया ऑफ स्क्वायर मान लो 5, सॉरी साइड ऑफ स्क्वायर 5 मान लेते हैं, लेंथ 4 मान लेते हैं,
इसका 3 मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं 7, और ये मान लेते हैं 5। और ये क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। कुछ भूल रहा हूँ क्या मैं यहाँ पे? कुछ तो भूल रहा हूँ। अच्छा, अरे पास तो किया ही नहीं अपना। आर्ग्यूमेंट्स पास ही नहीं करे, तो साइड को पास करना पड़ेगा। ये दो चीजें लेता है, लेंथ LENGTH, और अपना विड्थ, और ये अपना लेता है बेस और हाइट। अब चलेगा। कुछ भी लिख दो। अब आ रहा है ठीक ठीक आंसर, यही होगा। 25, 5 का स्क्वायर 25, 4 × 4 16, और 70 डिवाइडेड बाय 2 इज 35। और कुछ तो नहीं मांगा इसने आउटपुट में? 2 डेसिमल प्लेस मांगा है ना? तो इसको 2 डेसिमल प्लेस बनाने के लिए हमें करनी होगी फॉर्मेटिंग। इसको हमें डालना होगा इसको हमें क्या करना होगा? हम इसको हटाएंगे, इसको इधर लगाएंगे, इसको इसके साथ लगाएंगे, यहाँ का पोर्ट हटाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, और इसको ब्रैकेट में डालेंगे, और इसके साथ लिख देंगे .2s। ठीक है, सेम चीज इसके साथ करेंगे। अच्छा, मैं सोचूं क्या गलती होगी। अच्छा अच्छा, अरे यार, अब सही है ना?
इसको जरा नहीं यार, कॉपी नहीं करते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। फिर गलती कर रहा हूँ। तो अगर चलाऊं, सेम डालूंगा, सेम। अभी हमें 2 डेसिमल प्लेस ला रहे हैं बढ़िया से। तो तो भाई यही सब था आज। आई होप you can now your concepts are clear regarding function, recursion, recursion की और प्रैक्टिस करो, मैं भी करता हूँ। Okay, so thank you. If you have any doubt, please comment, and if you want to give any feedback, also comment that. So this is all for today. Thank you.